राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद नलसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ 21वां दीक्षांत समारोह में की शिरकत कया। भारत उच्च कानूनी परंपरा री राखी विरासत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कर्या शिरकत कया। नई शिक्षा नीति शिक्षा स्तर ने सुधारवा में ओवेड़ी मददगार साबित। सहकारिता नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक जोधपुर में करी जन सुनवाई कया। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना रे जरिए बिना ब्याज 1 लाख रुपया ताई रो ऋण देवारो काम करेली मां की सरकार। प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत रो कर्यो गयो आयोजन। आमजन ने सस्ता सुलभ और त्वरित न्याय करवायो गयो उपलब्ध। और जयपुर में राज्य तीरंदाजी प्रतियोगिता 8 से 3 अक्टूबर ताई करी जा रही है आयोजित। प्रदेश भर से 1032 खिलाड़ी ले रहा है भाग। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अरनिशा डाबले और खबरा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद री नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ 21वां दीक्षांत समारोह ने संबोधित कर्या। राष्ट्रपति कहा कि भारत उच्च कानूनी परंपरा री विरासत राखी है। वे विद्यार्थियों से आह्वान करता थका कहा कि उच्च नैतिक मूल्य रा बारा माए जानकारी देनो आपरी जिम्मेदारी है। It is your duty to give your advice in line with high ethical standards. Whatever role you choose as a legal professionals, always stick to the values of integrity and courage. Speaking truth to power makes you more powerful. I have observed that girl students have outnumbered boys as medal winners. Although the total number of girl students who received a degree today is a little less than that of the boys, I have seen this pattern across many institutions of higher education. This demonstrates that despite several limitations which they still have to face, our daughters are making us proud with their excellence. I convey my special appreciation for the girl students in today's convocation. I also expect these girls to help and empower their other women and girls who are underprivileged. NALSA has taken lead in several areas. In today's convocation, members of bar and bench are gathered here. Every segment of the society is a stakeholder in promoting safety of women. I urge upon NALSA, including its alumni, to enlist the support of all stakeholders and help in setting up a nationwide network of women advocates and law students. This network will work with the mandate to make concerted efforts to prevent atrocities against women and deal with cases of such atrocities. Dear students, I am sure you will utilize your education in NALSA as an effective instrument of social justice and development. With this approach, you will add meaning to your success. You will also have the satisfaction of making contribution to our national goals. I wish you a very bright future. Thank you all. Jai Hind, Jai Bharat. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर्या। उपराष्ट्रपति विकसित भारत 2047 में महिलावां और शिक्षा री भूमिका विषय माथे आपरा विचार रख्या। उपराष्ट्रपति कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रो व्यक्ति रा विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। नई शिक्षा नीति शिक्षा रा स्तर ने सुधारवा में मददगार साबित होवेली। वे कहा कि बालिकाओं ने शिक्षित कर समाज और देश रो विकास करियो जा सके है।
Education is fundamental. Education is most transformative mechanism of change. There can be no change without education. Education has to be quality education. Education has to be purposeful education. Education has to be beyond degree. Pursuit of degrees one after another is not the right approach to education. And that is why after 3 decades, the country came to have national education policy that allows students full exploitation of their talent. They have been distanced from degree-oriented education. It has been focused on skill education, aptitude. Simultaneously, you can pursue courses. By and large, the nation has adopted the national education policy. I appeal to the students, to the states that have not done it, to think about their youth, to think about future of their youth, and adopt this well-evolved national education policy. सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक आपरा 1 दिनारा दौरा माथे जोधपुर पुग्या। मंत्री जोधपुर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन री समस्यावां सुनी। खबर नवीसा बातचीत करता थकावे कया के फसली ऋण रे साथे किसानारी आय बढ़ावा खातर पशुधन खातर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना रे जरिए सू बिना ब्याज 1 लाख रुपया ताई ऋण देबारो काम मां की सरकार करेली। हमने जो है नई सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन अभी रोक रखा है और जो पुरानी सोसाइटियों में जितना भी है, आदरणीय अमित शाह जी हमारे इस विभाग के सहकारिता विभाग के मंत्री भी हैं, वो भी इस बात को लेकर के काफी सक्रिय है और जिस तरह से वो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, एक बर्ड्स एक्ट भी लेकर के आए हैं और निश्चित रूप से हम जितने भी निवेशक हैं उन सब का पैसा लौटाने का काम भारत सरकार भी कर रही है और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी की भी भावना है कि निवेशकों को उनका ब्याज सहित पैसा लौटाया जाए। बूंदी में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन कर्यो गयो। जिला में कुल 12 बेंचा माथे मामलारू निस्तारण कर्यो गयो। जिला मुख्यालय माथे 5 बेंच स्थापित करी गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत विभाग, बैंक संबंधी, पारिवारिक न्यायालय, राजस्व विभाग समेत कई महकमारा मामलारो आपसी समझौता सु निस्तारण कर्यो गयो। सभी जिलों में इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नालसा के गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है। इस क्रम में बूंदी द्वारा भी व्यापक तैयारियां करके और पूरे अथक प्रयास से प्रचार प्रसार करके आज इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन बूंदी जिले में और समस्त जितनी तहसील हैं, तालुकाएँ हैं बूंदी की, वहाँ पे भी इसका आयोजन किया जा रहा है। और लगभग बूंदी जिले में जैसा कि इसका उद्देश्य है लोक अदालत का कि ना कोई जीता ना कोई हारा, दोनों ही पक्षों को संतुष्टि से जो छोटे मोटे अपराध हैं या छोटे राजीनामा योग्य मामले हैं, सिविल के हैं, राजस्व के मामले हैं जो वर्षों तक लंबित रहते हैं, इस लोक अदालत के माध्यम से जो कि वैकल्पिक विवाद निस्तारण का एक प्रमुख साधन है या वैकल्पिक व्यवस्था है, जिसका हमने पूरे प्रचार प्रसार करके आम जनता में ये मैसेज दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रकरणों का निस्तारण कराएं। इसी क्रम में हमारे पास 20,000 आवेदन पूरे जिलों से प्राप्त हुए और हमने 20,000 मुकदमों को आज रखा है और ये भगवान के देखते हैं कि क्या सब। विश्वास करता हूँ कि जो बेंचें हमारे द्वारा बनाई गई है उनके द्वारा अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों को निस्तारण का लाभ मिलेगा, जिससे आम जनता में संतुष्टि होगी। सभी अपने इसमें सिविल प्रकार के राजीनामे योग्य आपराधिक प्रकरण, सभी प्रकार के सिविल मामले, एनआई एक्ट से संबंधित मामले हैं, एमएससीटी के मामले हैं, पारिवारिक न्यायालय है के मामले हैं और अपने प्री लिटिगेशन के जो मामले हैं जिनमें कोई बैंक के लोन के हैं, रिकवरी के हैं, बिजली पानी के बिल संबंधी कोई मामले हैं, राजस्व न्यायालयों के लंबित मामले हैं जिसमें पत्थरगढ़ी, सीमांकन, नामांतरण और कोई इंडेंशन का दावा है।
सभी को इसमें लिया गया है। इस बार हमने कुल 12 बेंच बनाई हैं, जिसमें 5 बेंच अपने मुख्यालय पर है और अन्य बेंच तालुका स्तर पर है और वो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं अपना। झुंझुनू मुख्यालय माथे आज भी राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन कर्यो गयो। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर रा निर्देशानुसार आज करी गई राष्ट्रीय लोक अदालत खातर 11 बेंचारो गठन कर्यो गयो। इनमें 18,000 सु बता प्रकरण सुनवाई खातर चिन्हित कराया गया। जिला और सेशन न्यायाधीश दीपा गुजर बताया कि लोक अदालत में आपसी समझौता रे जरिए सु दोनों ही पक्षकारा ने समझार मामला रो निस्तारण कर्या जावे है। प्रत्येक जिले में, राज्य में, तालुका स्तर पे, और ये पक्षकारों के लिए एक सुनहरा मौका है एक सौहार्दपूर्ण माहौल में अपने प्रकरण का निस्तारण करने का। लोक अदालत का अपना एक बहुत महत्व शुरू से ही रही है। पक्षकारों के बीच आपसी राजीनामे से लंबे चलते हुए प्रकरणों को, पुराने प्रकरणों को, इन सभी को हम खासतौर से निस्तारण करने के पूरे प्रयत्न करते हैं। और जहाँ पर पक्षकार ये समझते हैं कि भाई जो है बहुत समय से, जैसे बैंक्स के हो गए, इंश्योरेंस के हो गए या अन्य MSCT के हो गए, पारिवारिक मामले हो गए, जो कि जटिलताओं में कई बार लंबे प्रोसेस से फंसे रहते हैं, नहीं हो पाते निस्तारित, वो एक सौहार्दपूर्ण माहौल में आपसी मेल जोल के हिसाब से एक बड़े ही मैत्रीपूर्ण तरीके से इनको हम निस्तारित करवाते हैं। पीड़ित उपभोक्ताओं को और सेवा प्रदाताओं को एक टेबल, जिसे हमने न्याय टेबल का नाम दिया, जिसपे उनको बैठाया, सुना गया। मैं साधुवाद दूंगा हमारे विद्युत विभाग के सभी अधिकारी को, SC साहब को, एक्शन साहिबान को, जिन्होंने पीड़ित उपभोक्ताओं को विद्युत अधिनियम के अनुसार जो राहत दे सकते थे, बड़ी संख्या में राहत दी है। और शेखावटी में जैसा कि काश्तकार जो लोग हैं वो विद्युत समस्याओं से जूझते रहते हैं, उनको राहत जो दी गई है, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय लोक अदालत का जो उद्देश्य है कि इसमें ना कोई जीतता है, ना कोई हारता है, दोनों के आपसी समन्वय से और पवित्र भावना से, मुकदमेबाजी से हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति हैं वो अपने समस्याओं को उचित प्लेटफार्म पर रखें और न्याय प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच के साथ आगे कदम बढ़ाएं। विभिन्न विभागों के साथ साथ सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक आए हैं और वो अपने कस्टमर से अपने अपने बैंक के हिसाब से जो बैंक में प्रदत्त मैक्सिमम छूट है उसका लाभ देते हुए कस्टमर के खातों का निपटारण करने के लिए आए हैं। राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रा निर्देश माथे श्री गंगानगर जिला मुख्यालय माथे आज तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन कर्यो गयो। प्राधिकरण राज सचिव ADJ गजेंद्र सिंह तेन गोरिया बताया कि इन माए पक्षकारा री सहमति सु प्रकरणा माए राजीनामा करवाया गया है। वे कहा कि लोक अदालत रा सफल आयोजन खातर जिला माए कुल 14 बेंचारा गठन कर्यो गयो। इस लोक अदालत में विशेष रूप से पेंडिंग केसेस और प्री लिटिगेशन के केसेस रखे गए। प्री लिटिगेशन से मतलब है ऐसे मामले जो बैंक, बीमा और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित हैं, ऐसे मैटर्स रखे गए। जल का विवाद, बिजली का विवाद, तो इसमें पक्षकारों को भारी मात्रा में लाभ हुआ है। राष्ट्रीय लोक अदालत में 2 महीने के तनख्वाह का रेस्को की तरफ से गार्ड था मैं, वो मेरा निपटारा हो गया जी। यहाँ पे ये व्यवस्था काफी अच्छी है, मैनेजमेंट काफी अच्छा है। यहाँ पे जो खाने पीने की और बैठने की, सुनवाई की काफी अच्छी व्यवस्था है। अपने फादर की डेथ होने पे मैं एक क्लेम के लिए लगाया था, लोन जो हुआ था, तो उसके लिए मैं SBI के बैंक में करवाया था, तो उसको मैं क्लेम लेने के लिए उसके लिए आया हूँ। नीमकाथाना जिला रा खेतड़ी स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम रा अजीत विवेक संग्रहालय में 2 माह सु चाल रहा परिदर्शन कार्यक्रम रो समापन हो गयो। रामकृष्ण मिशन सचिव स्वामी आत्मनिष्ठानंद महाराज कार्यक्रम री अध्यक्षता कर्या। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद रा जीवन चरित्र और वारा प्रेरणादायी विचारा रा बारा में अवगत करवायो गयो। 2 महीना ताई मूल्य, शिक्षा, प्रसार और संवर्धन विषय माथे कई कार्यक्रम आयोजित हुआ।
परिदर्शन कार्यक्रमમાં 68 સ્કૂલાના 112 અધ્યાપક અને 1025 મેધાવી છાત્રામાં ભાગ લીના સગલા સહભાગી સ્કૂલાને રામકૃષ્ણ મિશન કાણીસુ સ્મૃતિ ચિંદેર सम्मानित કર્યો ગયો। विगत 2 महीना तक अजित विवेक संग्रहालय परिदर्शन और प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उसी का आज समापन उत्सव था। मूल्य शिक्षा प्रसार एवं संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र एवं उनके प्रेरणादायी विचारों से युवा पीढ़ी को परिचित एवं लाभान्वित करने हेतु रामकृष्ण मिशन विवेकानंद स्मृति मंदिर की ओर से सभी माध्यमिक स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए विवेक संग्रहालय परिदर्शन एवं प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत खेतरी, नीमका थाना और झुंझुनू ब्लॉक के 68 स्कूलों के 112 अध्यापक एवं कक्षा 8 से 10 के 1025 मेधावी छात्र छात्राओं को अजित विवेक संग्रहालय का निःशुल्क परिदर्शन कराया गया एवं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र पर आधारित एक लघु वृत्तचित्र भी दिखाया गया। धौलपुर में शारदीय नवरात्रे री अभीसू तैयारियां शुरू हो गई है। बाजारा माए माँ दुर्गा री मूर्तियां री दुकाना सजबा लागी है। बाजारा माए 7 फीट ताई री माँ दुर्गा री मूर्तियां उपलब्ध है कि ग्राहका री मांग मिट्टी सु बनी मूर्तियां री है ताकि वे ना आसानी सु विसर्जित करियो जा सके। दूजी काणी लोगारो कहनो है कि आ मूर्तियां इको फ्रेंडली होवे है जो पर्यावरण और जल ने प्रदूषित होबा सु बचावे है। दुर्गा चालू हो रहे हैं और हमारे यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं जो कि 1 फुट से लेकर 7 फुट तक मिलती हैं और सभी की रेंज है 1 फुट की मूर्ति है। और ज़्यादातर लोग मिट्टी की मूर्तियाँ हम बनाते हैं क्योंकि ये पर्यावरण को सुरक्षित रखती हैं और इन्हें पानी में भी विसर्जन करने पर कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से विसर्जन हो जाती हैं। मूर्तियाँ ले जाते हैं और हर साल वो करते हैं, बैठाते हैं और ये मिट्टी की मूर्तियाँ हमें पसंद है और ये विसर्जन करने में तो सहयोग अच्छी रहती है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान नहीं होता है। बाड़मेर में सेनारा जवान साइकिल रैली निकालकर स्वच्छता रो संदेश दीना वे आमजन सु आपरा जीवन में स्वयं सु स्वच्छता री शुरुआत करवारी अपील कर्या। रैली ने ब्रिगेडियर गगनजीत हरी झंडी दिखार रवाना कर्या। इन दौरान ब्रिगेडियर कया के लाडला 5 बरसा सु लगतमार इंदौर स्वच्छता माए प्रथम स्थान माथे पण मारो प्रयास होनो चाहिए कि इन बार बाड़मेर स्वच्छता माए पहला स्थान माथे आयो है। रमन आगे कर, आगे एडवांस। ये स्वच्छता अभियान 10 साल से चल रहा है। ये स्वच्छता अभियान पूरी दुनिया में एकत्रित करके लोगों का सबसे बड़ा अभियान है जो हमारी कंट्री ने शुरू किया है। 2014 15 अगस्त को ये प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था स्वच्छ भारत मिशन। उस स्वच्छ भारत मिशन में कई चीजें शामिल हैं जिसमें इस साल स्वच्छता ही सेवा 2024 को लॉन्च किया गया है जिसमें स्वच्छता सब जगह से, जैसे कुछ चीजें ऑफिसर ने बताई आपको, अपने प्रांगण, अपने घर के प्रांगण से शुरू होके स्वच्छता बिल्कुल आसपास की नेबरहुड में जाती है और आपके देश को स्वच्छ बनाती है। भरतपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े रे तेज साइकिल मैराथन रो आयोजन कर्यो गयो। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव हरी झंडी दिखार साइकिल मैराथन ने रवाना कर्या। कलेक्टर बताया कि स्वच्छता खातर आमजन ने जागरूक करवारो उद्देश्य सु इन मैराथन रो आयोजन कर्यो गयो। इन मौके नगर निगम रा आयुक्त श्रवण विश्नोई, जिला शिक्षा अधिकारी RD बंसल समेत कई अधिकारी मौजूद रिया। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के अंतर्गत जागरूकता के लिए आज बच्चों के द्वारा साइकिलिंग रैली का कंपटीशन कराया गया है। इसमें शिक्षा विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा ये रैली निकाली गई है जिसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के बारे में लोगों को अवेयर करना है। अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में तो स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है जिसमें संस्कार स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता ये अभियान चल रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें ताकि लोग इससे अवेयर हों और हमारे भरतपुर शहर को पर्यटन में सबसे आगे लेकर।
श्रीगंगानगर माए राष्ट्रीय पोषण माह रे तेत आज महिला और बाल विकास विभाग रा तत्वावधान माए सादुल शहर उपखंड माए ब्लॉक स्तरीय पोषण मेला रो आयोजन करियो गयो। इन दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व काणी सू पोषण प्रदर्शनी लगाई गई, जिण माए सू विभागीय और स्थानीय पोषाहार री विविध रेसिपी बनार प्रस्तुत करी गई। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं ने स्वास्थ्य खातर प्रति जागरूक करियो गयो। पैंतालीस से 50 तरह के व्यंजन बनाए गए और लोगों को जागरूक किया गया कि देखो मतलब इस पोषाहार से कितने अच्छे तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं और लोग जागरूक होंगे और पोषण युक्त समाज का निर्माण होगा। पोषण मेला ये 8वां पोषण मेला है, सितंबर माह में मनाया जाता है। इसमें हमारा ICDS का जो पोषाहार है उसका इस्तेमाल करके अलग अलग व्यंजन बनाकर उनकी प्रदर्शनी की जाती है। उसमें अलग अलग जन सहभागिता अधिकारियों की और इन सब की विजिट होती है। और आज का जो पोषण मेला मनाया गया है इसमें रंगोली कार्यक्रम करवाया गया है। इसमें जन आंदोलन हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डैशबोर्ड है, उसके थ्रू इनको प्रतियोगिता करवाई गई थी और इसमें व्यंजन प्रदर्शनियां करवाई गई थी, जिसके तहत अलग अलग पोषाहार से टेस्ट करके और उसमें हमने प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान दिया गया था। इस कार्यक्रम में व्यंजन प्रदर्शनी लगाई गई, रंगोली प्रतियोगिताएं भी करवाई गई और यह पोषण माह है जो एक बहुत ही अच्छी थीम के तौर पे जैसे गर्भवती महिलाओं को पोषाहार के बारे में बताना, उनको पोषाहार देना और जो पोषाहार हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर आता है वर्करों के पास में उनका अलग अलग तरह से जैसे व्यंजन बना के उनका सदुपयोग करना, इसके बारे में सभी को बताया गया। चूरू में नगर परिषद अंबेडकर सर्किल सू अपनी योजना नुआ कलेक्ट्रेट ताई चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान रे तेत कार्रवाई कीनी। इन दौरान नगर परिषद री टीम मुख्य मार्ग माथे आवा वाला अतिक्रमण ने हटायो गयो। आयुक्त अभिलाषा सिंह बताया कि अभियान रे तेत अवैध रूप सू बनाया गया निर्माणा ने हटायो गयो और आ कार्रवाई आगे भी जारी रहेली। जो भालेरी रोड है वो चूरू शहर की मुख्य सड़क है, जिसका ब्यूटिफिकेशन की जरूरत है। प्रॉपर अगर हमारे पास एरिया इसमें अवेलेबल है तो वॉकिंग पाथ भी होना चाहिए। तो प्रथम से हम इसको अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद में पाथ और ग्रीनरी की व्यवस्था जो भी है वो एक प्रस्ताव तैयार करके हम उसको करवाने की कोशिश करेंगे। इस मार्ग पे जितने भी अतिक्रमण थे वो हमने एक रूट से सभी का हटाया है और आगे भी शहर में जहाँ जहाँ अतिक्रमण की प्रॉब्लम है तो ट्रैफिक पुलिस को भी हम साथ रख रहे हैं कि यातायात में जो भी अवरोधक है, जो भी अतिक्रमण है, उनको हम क्रमिक रूप से हटाएंगे। अभी तक जो पीछे हमने कोई एक का भी छोड़ के नहीं है, इस वजह से इसका छोड़ा है या उसका छोड़ा है। हमें जो बिल्डिंग लाइन के बाहर जो भी अस्थायी अतिक्रमण वो सब हटाए हैं। डीडवाना कुचामन पुलिस काणी सू जिले भर में अवैध मादक पदार्थों माथे कार्रवाई करी गई। डीडवाना कुचामन जिला रा 10 थाना में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ दर्ज 24 मुकदमा में पुलिस काणी सू आ कार्रवाई करी गई। करीब 2550 किलो अवैध मादक पदार्थों रा निस्तारण करियो गयो। कार्रवाई रे दौरान जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा खुद मौका माथे मौजूद रहा। अलग अलग थानों में NDPS के तहत जब्त माल, जिसमें अफीम के जो पौधे हैं, डोडा है, गांजा है, इस तरह के करीबन 24 माल 10 थानों का 24 माल है, जिनका आज हम उसमें नियमानुसार NDPS एक्ट के तहत निस्तारण कर रहे हैं। और उसमें सभी जो निर्धारित जो हमारी कमेटी है वो इसमें पूरी प्रक्रिया के तहत आज इसका नष्टीकरण कर रहे हैं, ताकि थानों में जो माल खाने भरे पड़े हैं, वो सड़ रहे हैं, वहाँ जगह हो सके और अनावश्यक रूप से वहाँ पे किसी तरह की दिक्कत ना हो। जयपुर एक निजी यूनिवर्सिटी में राज्य तीरंदाजी प्रतियोगिता 2024 रो आयोजन करियो जा रहा है। प्रतियोगिता आज सू 3 अक्टूबर ताई चालेली, जिनमें सू प्रदेश भर सू 1032 खिलाड़ी भाग ले रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म उद्घाटन समारोह ने संबोधित करता थका कया के प्रदेश में तीरंदाजी रा खिलाड़ियों रो स्तर लगातार बढ़तो जा रहो है। अठेरा खिलाड़ी न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर माथे आपरी प्रतिभा रो परचम लहरा रही है। राजस्थान तीरंदाजी संघ रा महासचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर प्रतियोगिता रो उद्देश्य और राज्य में तीरंदाजी रा विकास माथे प्रकाश डालनो है। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं
कि किसी भी प्रकार का खेल हो, राजस्थान के खिलाड़ी उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके मेडल लाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार उनके हितों का भी ध्यान रख रही है और खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित हैं और उन्होंने खेल को बढ़ावा मिले इसके लिए बजट में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार की ओर से खिलाड़ियों को समय समय पर हर संभव मदद दी जाती है और चूंकि मैं सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते इतना कह सकता हूं कि हम राजस्थान के युवाओं के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं, उसको करके रहेंगे। राजस्थान राज्य तीरंदाजी प्रतियोगिता आज शुरू हुई है। आज तीरंदाजी की सीनियर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 28-29 को सीनियर प्रतियोगिता जिसमें 400 खिलाड़ी 32 जिला संघों के भाग ले रहे हैं। इसके बाद में सब जूनियर प्रतियोगिता 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी और 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को जो है जूनियर प्रतियोगिता आयोजन की जाए। यहाँ जिस प्रतियोगिता में लगभग तीनों कैटेगरी को मिला के 1200 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे और इनमें से राजस्थान टीम जो चयनित होगी वो आगामी नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। देखिए, ये प्रतियोगिता बच्चों के लिए और जूनियर्स के लिए सीखने के लिए एक बहुत बड़ा स्तर है, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं, मेरे जैसे काफ़ी अच्छे तीरंदाज यहाँ भाग लेंगे, जिनको देखकर वो आगे की प्रतियोगिताओं के लिए हौसला अफजाई होगी। जी, भारत सरकार का जो रवैया है खेलों को लेकर वो काफ़ी बदला है और खेलों को एक प्रायोरिटी माध्यम बनाया गया है कि भारत देश जब किसी टूर्नामेंट प्रतियोगिताओं में उतरता है तो वो अपना एक लेवल सुधारे और अच्छी रैंकिंग में आए। उसके लिए भारत सरकार बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को सपोर्ट दे रही है और सुविधाएं प्रदान कर रही है। राजस्थान सरकार बहुत अच्छा कर रही है। मैं अभी आउट ऑफ टर्न में जॉब कर रहा हूँ। खेलों के मंच पे राजस्थान सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है। खास खबरा एक बार फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद री नलसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ रा 21वां दीक्षांत समारोह में कीनी शिरकत कया। भारत उच्च कानूनी परंपरा री राखी विरासत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर रा एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कर्या शिरकत कया। नई शिक्षा नीति शिक्षा रा स्तर ने सुधारवा में ओवेली मददगार साबित। सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक जोधपुर में करी जन सुनवाई के आ गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना रे जरिए बिना ब्याज 1 लाख रुपया ताईं रो ऋण देबारो काम करेली मां की सरकार। प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत रो कर्यो गयो आयोजन। आमजन ने सस्ता सुलभ और त्वरित न्याय करवायो गयो उपलब्ध। और जयपुर में राज्य तीरंदाजी प्रतियोगिता आज सु 3 अक्टूबर ताईं करी जा रही है आयोजित। प्रदेश भर सु 1032 खिलाड़ी ले रहा है भाग। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।